But the big news today is that we are launching our new flagship model, and we are calling it GPT-4o. तो ये है चैट जीपीटी 4o की लेटेस्ट अनाउंसमेंट। Hey, how's it going? Hey there, it's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. What's up with that ceiling about? Are you in a cool industry style office or something? और ये है इस मॉडल का डेमो। ये मॉडल रियल टाइम पर टेक्स्ट, ऑडियो और विजन को एनालाइज करके ह्यूमन लाइक इमोशंस में रिस्पॉन्स देता है। बाय फार इट इज द मोस्ट रियलिस्टिक चैटबॉट आई हैव एवर सीन। कुछ दिन पहले मैंने AI फूल्स के ऊपर वीडियो बनाई थी क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट्स रियल में कचरा थे एंड पर्टिकुलरली रैबिट R1 एक स्कैम था जिसे इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। बट दिस इज द टाइम I can safely say कि we are one step more close to get a personal human like assistant। इस ऐप के बाद सिरी जैसे असिस्टेंट भी चोमू लग रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम OpenAI के इस लेटेस्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं और साथ में इसके यूज केसेस के साथ साथ हम इसके पॉसिबल खतरों के बारे में भी डिस्कस करते हैं। Where the race for dominance in generative artificial intelligence has just stepped up a gear. Rapid advancements in artificial intelligence continue as companies roll out new products, sparking both wonder and concern. But the big news today is that we are launching our new flagship model, and we are calling it GPT-4o. The laughing, chatting, singing AI, so responsive, says The Guardian, you could almost forget it's not a sentient being. Is AI for replacing humanity? Is it for replacing human connection? And if that is what it's for, is that what we really want? इस पर्टिकुलर मॉडल की एक खास बात है कि ये ह्यूमन लाइक इमोशंस के साथ लोगों के साथ बात करता है। Hey, ChatGPT. Hey there, what's up? How can I brighten your day today? Okay, yeah, so I'm going to show you a selfie of what I look like, and then I'd like you to try to see what emotions I'm feeling based on how I'm looking. Sounds like a fun challenge. Go ahead and show me that selfie, and I'll put my emotional detective hat on. Okay, so here's me. So what kind of emotions do you think I'm feeling? It seems like I'm looking at a picture of a wooden surface. Oh, you know what? That was what- the thing I sent you before. Don't worry, I'm not actually a table. Okay, so take another look. That makes more sense. There we go. It looks like you're feeling pretty happy and cheerful, with a big smile and maybe even a touch of excitement. Whatever's going on, it seems like you're in a great mood. OpenAI के हिसाब से ये पर्टिकुलर मॉडल ऑन एन एवरेज 320 मिलीसेकंड में आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देता है एंड दिस रिस्पॉन्स टाइम इज सिमिलर टू ह्यूमन रिस्पॉन्स टाइम। और इस मॉडल की एक और खास बात है कि ये फास्ट होने के साथ साथ चीप भी है। अब इसके यूज केसेस को हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला यूज केस तो यही है कि इसकी हेल्प से विजुअली चैलेंज्ड लोग ऑलमोस्ट रियल टाइम पर अपने सराउंडिंग्स के बारे में जान पाएंगे। Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Right now the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. आई नो कि आने वाले टाइम में हम ब्रेन चिप के माध्यम से इस डिसेबिलिटी को टैकल करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग दिस मॉडल इज रेवोल्यूशनरी। इसके अलावा ये टेक्स्ट को रियल टाइम में समझकर उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स जनरेट करता है। So, ChatGPT, what equation did I write down there? I see it now. You wrote down 3x plus 1 equals 4. Yep, Let's work- exactly. So what's the first step I should take to try to solve this? The first step is to get all the terms with x on one side and the constants on the other side. So what do you think we should do with that plus 1? Okay, I'm going to try to subtract 1 from both sides, and then I'll see what I get. Great idea. Perfect. Now, what do you get when you subtract 1 from both sides? Okay, so ChatGPT, this is what I ended up with. How does this look?
Spot on. Now you've isolated the term with x on one side, and it looks like 3x equal 3. What do you think we should do next to solve for x? I'm not sure. Can you give me another hint? Of course. You have 3x and you want to find the value of x. Think about what operation would undo multiplication. Is it subtraction? Close, but think of the opposite of multiplication, because 3x means 3 times x. Okay, I think it's division. Let me try to divide both sides by 3 and let me see what I get. Bingo! Go ahead and divide both sides by 3. Okay, so ChatGPT, this is what I ended up with. How does this look? It looks perfect. You've solved it, and x equals 1. इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर ऐप को एज अ ट्रांसलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं. Hey, how's it been going? Have you been up to anything interesting recently? Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho algo interesante últimamente? Hola, bien. Sí, un poco ocupado aquí preparando un evento para la semana que viene. Hey, I've been good. Just a bit busy here preparing for an event next week. और इसके यूज केस देखें तो इट कैन बिकम अ ट्यूटर एज वेल. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Really, the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. और आने वाले टाइम में ये पर्टिकुलर असिस्टेंट हेल्प डेस्क असिस्टेंट को आराम से रिप्लेस कर सकता है. बहुत से बेसिक काम जैसे कि सर्विस रिक्वेस्ट को रेज करना इस मॉडल के तहत बहुत ही आसानी तरीके से किया जा सकता है. मैंने इस टेक्नोलॉजी के बहुत अच्छे आपको यूज केसेस बता दिए हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के अपने डाउन साइड भी हैं. जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस असिस्टेंट से आप बेसिक काम बहुत ही आसानी से करवा सकते हो. इट इज प्रीटी मच एक्यूरेट. तो श्योरली आने वाले टाइम में कॉल सेंटर्स में काम करने वालों की जॉब जाएगी. पहले मुझे लगता था कि एटलीस्ट टीचर्स तो इस टेक्नोलॉजी से सेफ हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से वो भी सेफ नहीं है और इसकी झलक हम यूज केस में ही देख सकते हैं. सेम इट गोज विद द कोडर्स. आई एम नॉट सेइंग कि जॉब ओपनिंग्स बंद हो जाएंगी, बट इस AI की वजह से जॉब ओपनिंग्स बहुत ही कम हो जाएंगी. बेसिक कोडिंग के लिए AI विल बी स्मार्ट इनफ. आज भी इफ यू सी एनी वेबसाइट तो उनमें भी मोर और लेस सिमिलर पैटर्न ही फॉलो होता है, और जहां पर भी सिमिलर पैटर्न फॉलो होने लग जाता है तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ ऑटोमेशन. राइटर हो, म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, कोई भी सेफ नहीं है. यहाँ पर डिबेट का ये मैटर नहीं है कि किसको AI का नेगेटिव इफेक्ट फील होगा और किसको नहीं, बट मेन कंसर्निंग पॉइंट तो ये है कि व्हेन, एंड आई थिंक द टाइम इज क्लोजर देन यू थिंक. Hey guys, in this video I want to share how I lost my job as a copywriter to AI, and I was one of the first people to actually I feel like I was one of the first people to lose their jobs to AI. And it's so stupid because on one side I love AI so much, and on another side it's completely destroyed my life and took everything from me. So there's that, I guess. जब मेरे हर एक क्वेश्चन के आंसर्स 1 क्लिक की दूरी पे हैं तो मुझे सोचने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी. हाउ एम आई गोइंग टू एनालाइज द थिंग्स. आई नो कि अभी भी क्रिटिकल थिंकिंग इज अ रेयर स्किल, बट ऐसे AI असिस्टेंट की वजह से ये स्किल और भी ज्यादा कम हो जाएगी.
आई नो इट इज अ वेरी बिग क्लेम, बट आने वाले टाइम में हमारी एग्जिस्टेंस पर ही खतरा हो सकता है और इसके लिए हमें रोबोट्स की भी जरूरत नहीं है। इफ यू सी तो एक सोसाइटी इन फैक्टर्स से फॉर्म होती है एंड ऑल दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। बट आज हमारे पास एआई है जिससे ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन खराब हो रहा है। वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर आइसोलेटेड। इसकी वजह से मेंटल हेल्थ खराब होती है। अब मेंटल हेल्थ खराब होगी तो कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा, आपको सुसाइडल थॉट्स आते रहेंगे, आप धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार बन जाओगे, कहीं भी एफर्ट्स लगाने का मन नहीं करेगा। और ये एफर्ट्स वाली बात इवन रिलेशनशिप्स में भी लागू होती है। बम्बल जो कि एक डेटिंग ऐप है, उसके सीईओ ने बोला है कि एआई आपके बिहाफ पर डेटिंग करेगा और बेटर मैच फाइंड करेगा। इट मींस कि आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। और मान लो जब आपने इनिशियली ही एफर्ट नहीं लगाया है तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप मैच्ड प्रोफाइल के ऊपर भी एफर्ट लगाओगे। आई एम श्योर कि आपने भी इस कोट को जरूर सुना होगा, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। जितनी भी डिस्कशन अभी तक की है तो तुमको समझ में आ गया होगा कि ये करंट जनरेशन किस प्रकार की है और आने वाली जनरेशन तो सोशल मीडिया और एआई के साथ ही बढ़ेगी। तो वो कैसी होगी? व्हेन यू हैव वीक पीपल इन दिस सोसाइटी तो उस समय सोसाइटल स्ट्रक्चर टूटने लग जाएंगे एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ अ सोसाइटी। बिकॉज ऑफ दिस there is very high chance कि we will see a civilizational decay. I always believe कि टेक्नोलॉजी से whole human race की भलाई होनी चाहिए। Surely इस टेक्नोलॉजी के बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन बेनिफिट्स के साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे हैं एंड दिस इज द रीजन आई बिलीव कि इस टेक्नोलॉजी को समय रहते रेगुलेट करने की जरूरत है। रेगुलेट करने के साथ साथ हमें भी इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम एआई जैसी टेक्नोलॉजी पर ओवर डिपेंडेंट ना बने। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में व्यक्त करते जाना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।